Welcome back to English classes. Myself Farin Kumar Mishra, FM sir, and today I am going to teach you a very important topic that comes for 10 marks each and every year. Yes, speech for the class 11 and 12. So first of all, understand what would be the format of a speech. Here it is written. So first of all, we will write greeting. Salutation, addressing to the audience. Secondly, we write self-introduction, means name and designation and introduction of the topic, means on what topic you are going to deliver your speech, that topic. And then content, that would be the very important. So content is divided into 3 parts, means you will write 3 paragraphs: facts about the topic, cause and effect of the issue, and secondly data and examples, that would be the real input, and then last conclusion by giving suggestions, and at last thanks giving to the audience. Thank you. So you should, while writing the speech, you should also remember point introduction. It means definition of the topic. You have to write the definition. And second, analysis is the topic in the term of issue and its cause, consequence, effect, etc. And then third, conclusion, suggestion. What would be your suggestion, measures and step for improvement? So first of all, you should take care about it. Try to make a rough draft first, and then you will write. And mind the word limit. It means you should take care about the word limit also. And here how to begin the speech. So begin with greeting, salutation, and by addressing the audience. And that's why first of all I, then you will write your name, then of class, wish to speak. Here would be 12 or 11 wish to speak on some very important topic of, and here would be the topic name. Second type, you will write good morning to you all. I, then name, then present my view on, please listen and try adapting in your life. So मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि स्पीच लिखना बहुत ही आसान है। बच्चों के हृदय में एक डर सा समा गया रहता है कि हाउ टू स्टार्ट, हम कैसे शुरू करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक क्लास 10 से ही आना शुरू हो जाता है स्पीच। सो ये 10, 11 और 12, चाहे आप कोई भी बोर्ड पढ़ते हो, ICSE बोर्ड पढ़ते हो, CBSE बोर्ड पढ़ते हो, यूपी बोर्ड पढ़ते हो, स्पीच क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 10 नंबर का आता है। तो चलिए देखते हैं। मैंने एक बार अंग्रेजी में बताया था, लेकिन आप बहुत बार कहते हैं कि सर एक बार हिंदी में भी बता दीजिए, हम लोग इधर के हैं और हिंदी मातृभाषा है। तो देखते हैं स्पीच। और सबसे पहले हाउ टू राइट अ स्पीच। हाउ टू राइट अ स्पीच। स्पीच हम कैसे लिखें? तो सबसे पहले जिस तरह से एक बढ़ई मेज बनाने से पहले उसका ढांचा बनाता है, दशहरा का अवसर है, दुर्गा जी बनाने से पहले उनके स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। स्पीच का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले हम ग्रीटिंग लिखते हैं, सैल्यूटेशन,
एड्रेसिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को एड्रेसिंग करते हुए, जैसे प्रिंसिपल के सामने बोल रहे हैं तो बोलते हैं ना, ऑनरेबल प्रिंसिपल, वर्दी गेस्ट एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये ग्रीटिंग्स है, सैल्यूटेशन, किसको आप कर रहे हैं, एड्रेसिंग द ऑडियंस। दूसरे नंबर पर हम सेल्फ का इंट्रोडक्शन देते हैं कि माई सेल्फ फणींद्र कुमार मिश्रा फ्रॉम क्लास 11 I am going to deliver my speech on and then topic name, I am going to deliver the speech on deforestation. Please listen to carefully. I have tried my level best to describe. मैंने बहुत ढेर सारा प्रयास किया है अपने लेवल से बेस्ट कि हम डिफॉरेस्टेशन को आपको समझा सकें। और कंटेंट में आपको क्या रखना है, कंटेंट में सबसे पहले आपको दिखाना फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक, कॉज एंड इफेक्ट, कि ये फैक्ट्स क्या है। तो उस टॉपिक के बारे में हम डिफिनीशन दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन डिफिनीशन ऑफ द टॉपिक के बारे में हम दे सकते हैं। फिर काज, कारण क्या है, जैसे डिफोरेस्टेशन पे आप स्पीच लिख रहे हो तो डिफोरेस्टेशन का कारण क्या है, तो डिफोरेस्टेशन का कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या जिसमें लोग घर बना रहे हैं, तो ऐसे हम काज और इफेक्ट डालते हैं। फिर है डाटा और एग्जाम्पल देते हैं रियल इनपुट का, ये खराब नहीं होना चाहिए। यदि कोई डेटा आप देना चाहते हैं किसी न्यूज़पेपर से, टीवी से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि पिछले साल जो है 200 हेक्टेयर वन काट दिए गए और वहां जो है 2 फैक्ट्रियां लगाई गई, तो इस तरह से कोई डाटा देना चाहते हैं तो डाटा कराता है। और लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष, बाय गिविंग सजेशन, आप उसमें अपना सजेशन देंगे कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, आप क्या चाहते हैं। जैसे डिफोरेस्टेशन पे यदि आप स्पीच लिख रहे हो तो उसका सजेशन क्या है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए, पीपल शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री, ढेर सारे पेड़ लगाने चाहिए उनको, ठीक है। फिर जो है हमें जो है कुछ ऐसी चीजें बोनी चाहिए जो मिट्टी के कटाव को क्या करती हैं, रोकती हैं। यदि आप जो है लिख रहे हैं मान लीजिए पॉपुलेशन पे, तो पॉपुलेशन के कंक्लूजन में आप लिखें कि सब लोग फैमिली प्लानिंग का क्या रखें, ध्यान रखें, सरकार द्वारा जो चलाया गया है वो रखें, क्योंकि कम से कम जितने बच्चे रहेंगे, इस तरह से हम क्या देते हैं, सजेशन देते हैं। और लास्ट में थैंक्स कहना नहीं भूलते हैं, थैंक्स गिविंग टू ऑडियंस, ऑडियंस को आपको क्या करना है, थैंक्स बोलना है। इसमें कोई टॉपिक ओपिक नहीं वो है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है आपके सामने, बहुत इजी है। लेकिन आपको ध्यान देने योग्य एक बात है, जैसे ये स्पीच में वर्ड लिमिट का आपको ध्यान देना है कि 200 है कि 250 वर्ड का है कि 300 वर्ड का है कि 150 का तो आता ही नहीं, 200 से 250 वर्ड के या 300 वर्ड के आते हैं, तो वर्ड लिमिट आपका पूरा होना चाहिए। और रिमेंबर इट, स्पीच भी इनफॉर्मल लेटर की तरह 3 पैसेज में रहता है और 3 पैराग्राफ में रहता है, और ये बड़ा होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है, बिग होता है। जैसे पॉइंट्स रिमेंबर के तौर पर आप याद रखिए कि आपको इंट्रोडक्शन जरूर देना है और टॉपिक को डिफाइन करना है। जैसे डिफोरेस्टेशन पे आप लिख रहे हो तो आपको डिफोरेस्टेशन क्या है, टू कट द ट्री कंटिन्यूअसली इज नोन एज डिफोरेस्टेशन, माने पेड़ों को लगातार कटाई कोई हम क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन कहते हैं। जैसे आप पॉपुलेशन क्या है, लोगों की जनसंख्या, लोगों का नंबर, जो सेक्स रेशियो है वो दिन रात बढ़ रहा है, यही जनसंख्या। तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं। दूसरा, एनालिसिस ऑफ द टॉपिक इन द टर्म ऑफ इशू एंड इट्स कॉज, कंक्वेंस, इफेक्ट, ईटीसी। जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं उसका कारण, उसके प्रभाव क्या है। जैसे आप डिफोरेस्टेशन पे लिख रहे हो तो इसके कारण क्या है, इसके कारण है
लोग जनसंख्या का बढ़ना, लोग घर बना रहे हैं, औद्योगिक संस्थानों को लगा रहे हैं जंगलों में। फिर जंगलों में जो हवाई अड्डे बन रहे हैं, जंगलों में जो है तमाम तरह के कैंप बन रहे हैं, तमाम तरह के अनुसंधान केंद्र बन रहे हैं। तो इससे और इसका प्रभाव क्या है आपको बताना पड़ेगा। ये डिफोरेस्टेशन का प्रभाव क्या है? तो डिफोरेस्टेशन का क्या प्रभाव हो सकता है आप अच्छी तरह समझते हो कि ऑल प्लांट टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड दे टूक द hydrogen dioxide means water in presence of sunlight and with the help of chlorophyll all plant make their food and release the oxygen gas। तो सारे पौधे आप जानते हैं कि सारे के सारे पौधे फोटोसिंथेसिस में अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, सभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में न बढ़ पाए उसको ऑब्जर्व करके पौधे क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हम जापान वालों की तरह पांटिंग करना शुरू कर देंगे, हाँफना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। फिर कंक्लूजन में आप जब भी लिखें तो सजेशन दें। जैसे मैंने बताया डिफोरेस्टेशन पे आप लिख रहे हैं तो आप सजेशन दें कि लोगों को डिफोरेस्टेशन से बचना चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी सकुशल रहे। और जो भी इस चीज को, इस स्टेप को इंप्रूवमेंट करने के लिए आप कर रहे हैं, जैसे बच्चे हैं आप तो क्या कर सकते हैं, आप रैली निकाल करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। रैली निकाल करके बच्चों को जागरूक करिए कि वो क्या करें, लोगों को जागरूक करिए कि वो क्या करें, कि पेड़ों की कटाई न करें, क्योंकि इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बारिश नहीं होगी, क्योंकि पेड़ क्या है, सीधे सीधे हमारे जीवन दाता है। हाँ ध्यान दें, यदि आप सक्षम नहीं है तो एक राय है, वैसे इम्तिहान में कम समय एक रफ का खांचा आप बना लीजिए कि हमको इस टाइप का ऐसे ऐसे डालना है, ठीक है। और वर्ड लिमिट का क्या रखेंगे, यू शुड माइंड द वर्ड लिमिट का ध्यान। अब चलिए, सब बच्चों के सामने प्रॉब्लम यही होता है, हाउ टू स्टार्ट, हम शुरू कैसे करें। तो यहां मैंने आपको दे दिया स्पष्ट कि सबसे पहले बिगिन विद ग्रीटिंग सैल्यूटेशन एंड बाय एड्रेसिंग द ऑडियंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं। जैसे स्टाइल 1 में दिया है, ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस हेल्दी एंड जॉयस मॉर्निंग। आई मीन्स योर नेम, सपोज योर नेम इज रमेश, आई रमेश of class 12 wish to speak on some very important topic of the deforestation. यहाँ क्या भर देंगे, deforestation. So please listen it carefully and if there would be any suggestion, personally suggest me। और आप इस तरह से लिखना क्या करिए, जो भी आपके दिमाग में आता है डिफोरेस्टेशन के बारे में। सेकेंड स्टाइल है गुड मॉर्निंग टू ऑल, जो भी बैठे हैं लिख दीजिए आई माई सेल्फ, मान लो लड़की है कोई तो लिख सकती है माई सेल्फ श्वेता, फ्रॉम क्लास 12 प्रेजेंट माई व्यू ऑन डिफोरेस्टेशन, प्लीज लिसन एंड ट्राई एडॉप्टिंग इन योर लाइफ। सो इस तरह से आपने देखा कितना इजी है स्पीच लिखना, अलग से आपको कुछ नहीं लिखना है। स्टाइल 1 और 2 को में से कोई एक एडॉप्ट करना और लिखना शुरू कर देना और इन बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि अब आप समझ गए होंगे, आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी यदि आपको स्पीच लिखने में या मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, इनफॉर्मल लेटर या जो भी टॉपिक मैं पढ़ाया हूं, बहुत ढेर सारा मैं पढ़ा हूं, किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, मुझसे पर्सनल टॉक भी कर सकते हैं। और मैंने नंबर भी दे रखा है।